दिखाई दिए वैसे रियल एस्टेट कंपनियों में, और आज फोकस श्रीराम प्रॉपर्टीज पर है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में 25 साल पूरे कर लिया है बिजनेस के, और इन्होंने एक रोड मैप सामने रखा है 2027 तक कि किस तरह के बिजनेस में अब अपना कारोबार बढ़ाना चाहेंगे। तो कंपनी का फोकस है मिड मार्केट और मिड प्रीमियम मार्केट, जिसके लिए उन्होंने वो SPL नेक्स्ट या फिर स्पेशल नेक्स्ट ब्रांड लॉन्च भी किया है। क्या है विजन, कैसे ड्राइव होगा, किन ज्योग्राफीज में ये ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, इस सब पर बात करेंगे कंपनी के ED एंड ग्रुप CEO गोपाल कृष्णन जी से। मिस्टर गोपाल कृष्णन, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर 25 इयर्स सिल्वर जुबली। अब बताइए, अगले 25 सालों में ग्रोथ आप रफली क्या एस्टिमेट कर रहे हैं? और आपने कुछ चीजें मेंशन की हैं कि मिड मार्केट, मिड प्रीमियम मार्केट में अब आप ज्यादा जोर देंगे। ये किन ज्योग्राफीज के साथ शुरुआत होगी? नमस्कार। हम लोग का करंट मार्केट फोकस है बैंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता। Historically we have been focused on these three markets, and also we focused on smaller cities like Vizag and Coimbatore, but we have now de-emphasized that several years ago. Forward में देखेंगे next 5 years, 10 years, Bangalore, Chennai, Kolkata will be there. Pune we are entering later this year. So therefore we think between Bangalore, Chennai and Pune will be a large part of our operation. Kolkata will continue to contribute volumes to us. And the fact that you're now focusing on mid-market and mid-premium market, how is it different from what you're doing already? Currently, last 10 years, हम लोगों का focus था affordable housing and mid-market. Like mid-market accounted for about 65-67% of our past projects. A completed portfolio in the completed portfolio, 67% is about mid-market. Rest was affordable and some small percentage was luxury. Forward portfolio based on what we have today, about 85% is already in mid-market, and over the next 3 to 5 years, we want to focus on mid-market and mid-market premium for a very simple reason. Market post-COVID has evolved. अभी COVID के बाद हम लोग देखेंगे तो customer preference थोड़ा shift हो गया. All in pan India, almost 69% of housing sales is in mid-market and mid-premium segments. Compared to about 50-52% pre-COVID. In Bangalore, Chennai, we have seen this percentage at 75% in 2023. So 75% of annual sales is actually in the mid-market in these markets. Chennai is about 62, Bangalore is about 75. So since the market is shifting towards it, and there's a big opportunity for a brand like ours, where Shriram brand is always a middle-income consumer target brand. And therefore, we think that is where the opportunity for us over the next 3-5 years is. Therefore, we are now committing ourselves to focus on mid segments for the next 3 to 5 years and increase our growth momentum over the next 3 years using this segment. गोपाल सर, हाय, गुड आफ्टरनून। जब आपका IPO आया था तब अपन ने चर्चा करी थी, तब आप लोग मिड मार्केट और अफोर्डेबल सेगमेंट में अपने आप को क्लासिफाई करते थे। आज आप कह रहे हो मिड मार्केट और मिड मार्केट प्रीमियम ज्यादा थ्रस्ट एरिया होगा, तो अफोर्डेबल पे तवज्जो कम करने का मन, और इसका मतलब क्या मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट करें या नहीं? Margin is one part of it. As you rightly pointed out, we used to focus on mid market and affordable in the past. जैसा मैंने बताया, 67% mid market focus था, mid market share था completed portfolio और ongoing portfolio में. Affordable and luxury accounted for the balance 30-odd%. Abhi going forward, I think affordable will maybe a small part of our portfolio, but mid segment will be a big part because market has changed. Post-COVID, publicly available research reports taking NROC and others. Last year, 2023, some of these markets have a 70-75% in Bangalore, 65% in Chennai are all in mid market. So market shift हो रहा है. So हम लोगों का strategy भी हम थोड़ा refocus कर रहे हैं mid market mid premium में. मिस्टर गोपाल कृष्णन, एक्चुअली जब भी हम बैंगलोर की रियल्टी कंपनियों से बात करते हैं,
वो नॉर्मली कहते हैं कि देखिए बैंगलोर में प्रीमियम प्रॉपर्टी इज परहैप्स द अफोर्डेबल और द मिड मार्केट फॉर मुंबई, पर आप मुंबई के बहुत करीबी मार्केट पुणे में उतरे, वहां पर भी प्राइस पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सो कैन यू गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग कि जब आप मिड प्रीमियम बोलते हैं किस तरह की प्राइस पॉइंट्स आप वहां पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और ये जो एम्बिशन है कि आप थोड़ा सा अपनी प्रोजेक्ट्स को प्रीमियम साइड की तरफ ले जाएंगे, तो कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? लैंड एक्वायर करेंगे, एग्जिस्टिंग लोगों से टाई अप करके बिल्ड करेंगे, क्या प्लान होगा? तो प्राइस टिकट साइज के बारे में बात करेंगे तो मिड मार्केट प्राइस बैंड टिकट साइज और प्राइस बैंड वुड बी समवेयर अराउंड 50 लाख टू 1 करोड़ 1.2 करोड़ टिकट साइज फॉर अपार्टमेंट कुड बी अ मिड मार्केट। और प्रीमियम देखेंगे तो 1.2 1.5 से 2 करोड़ तक जो टिकट साइज है वो मिड मार्केट प्रीमियम होगा। बैंगलोर चेन्नई मार्केट का सिमिलर प्राइस रेंजेस है। कलकत्ता में भी लेस, पुणे भी समवॉट सिमिलर मार्केट टू बैंगलोर एंड चेन्नई। ये भाव पे आप मुंबई में भी आइए ना सर। खैर, ये पुणे का इस साल के एंड तक लॉन्च की तैयारी, तो लैंड ऑलरेडी प्रोक्योर कर रखी है क्या, और कोई सॉफ्ट लॉन्च करा, मार्केट में डिपस्टिक करा आप लोगों ने? नहीं, फॉर द लॉन्चेस ऑल द वी डोंट स्टार्ट एनी प्री लॉन्च एक्टिविटी विदाउट लैंड इन कंट्रोल, बिकॉज विदाउट लैंड, विदाउट प्लान अप्रूवल, विदाउट रेरा वी कैन नॉट इवन सॉफ्ट लॉन्च। सो जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए बात कर रहे हैं फॉर 2020 FY25 का, सबका लैंड प्लान अप्रूवल वो सब प्रोग्रेस तो हो चुका है। सिर्फ पुणे में प्लान्स रेडी थे, MOEF अप्रूवल्स का जरूरत है। 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट लॉन्च है, इसीलिए MOEF का अप्रूवल का जरूरत है। और वो अप्रूवल थोड़ा डिले हो गया। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था अप्रैल मई में आएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन वो कॉन्टेक्स्ट में MOEF अप्रूवल्स थोड़ा डिले है। अभी फर्स्ट लेवल ऑफ अप्रूवल्स इज डन एंड द फाइनल अप्रूवल एंड देन प्लान अप्रूवल एंड रेरा, ये सब प्रोसेस थोड़ा 1-2 महीना लग सकता है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अक्टूबर में लॉन्च करेंगे पुणे में। चेन्नई और बेंगलुरु का जो भी लॉन्चेस प्लान्ड है फॉर द होल ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट 9 लॉन्चेस। About 3 launches are coming up in Q2 alone. All of these are at an advanced stage of launch, and therefore understandably plan approval RERA stage सब हो गया। अभी last the RERA registration process would have started, so as soon as it comes we'll be able to go ahead and launch formally. So जब तक formal launch होगा तब soft launch और EOI करेंगे। से फिर फाइनली यही सब पूछना चाहूंगी कि आपके प्लान्स काफी एक्सपेंसिव हैं। FY24 के अंत तक क्या हम देखेंगे कुछ ऐसा नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स? एंड FY27 की आपने बात की हुई है पहले, आई थिंक आपकी प्रेस रिलीज में या फिर कल जो मीडिया से बात कर रहे थे। सो व्हाट यू टारगेटिंग सेल्स में वहां, तब तक क्या आप अचीव कर पाएंगे? तो FY24 में हमारा सेल्स था 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट का। FY25 का हमने गाइडेंस किया 5.25 to 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट का गाइडेंस है। बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस एंड आवर लॉन्च पाइपलाइन, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग द गाइडेड नंबर। और the aspiration that we have and the mission that we have put out, or the targets that we have rolled out for the 3 year for ourselves, उसके बेसिस पे हमारा एनुअल सेल्स होना चाहिए 8-9 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए 3 साल के बाद। और उसके लिए पाइपलाइन थोड़ा अक्यूमुलेट कर रहे हैं। यू आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट पाइपलाइन एंड द इन्वेस्टमेंट। करंटली अपना पाइपलाइन है 42 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। उसमें 24 मिलियन स्क्वायर फीट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो 18-19 मिलियन स्क्वायर फीट का नया प्रोजेक्ट पोटेंशियल है। और बेस्ड ऑन द सेल्स टारगेट वी हैव, वी थिंक 3 साल में हम लोग का 20 मिलियन स्क्वायर फीट का सेल्स होना चाहिए। उसको सपोर्ट करने के लिए हमको एडिशनल प्रोजेक्ट एक्वायर करना पड़ेगा। तो वी आर टारगेटिंग इंटरनली टू डबल अवर न्यू प्रोजेक्ट पाइपलाइन फ्रॉम करंट 18-19 मिलियन स्क्वायर फीट। वी वांट टू डबल द पाइपलाइन, which would need because we do predominantly JDAs and DMs and to some extent stressed asset मिलेगा तो खरीदते हैं, और वो ऐसा खरीदने के टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लेके ASK में खरीदते हैं। इसलिए श्रीराम प्रॉपर्टीज का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा
will be हम लोग का एस्टिमेट है कि कुछ 400-500 करोड़ का कैपिटल will be required. We believe we will have enough capital from operations to support this for the next 3 years. So the intent is not to raise equity or public capital. Borrowing as required and cash from operation should be able to support our growth going forward. ओके गोपाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वो एग्रेसिव टारगेट जब से कंपनी ने सामने रखे हैं, स्टॉक में इस हफ्ते के मूव्स देखिए, बहुत तगड़े मूव्स बनाता हुआ। एक काम करें, इसका चार्ट पे समीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद